Yeah, today's session is all about Pascal's triangle part 2. In this part 2, we'll be seeing some new ideas from Pascal's triangle. Okay, so I'm sharing my screen. Yeah, is it visible? Blank Yes, sir. screen. Yes, sir. Okay, now tell me Pascal's triangle. Row number 1. What are the 3 rules of Pascal's triangle? Number of row, number of numbers. equals to number Number of rows equal to number of numbers. Numbers. Great. What is the rule number 2? Every row starting and ending number should be 1. Every row is starting and ending number is 1. Should be 1. Yeah, it should be 1. So let us create this Pascal's triangle. Tell me, row number 1. It will start with 1. 1. Row number 2. 2, 1. 1 and 1. 1. Row number 3. 1, 2 and 1. 1. Center one is 2 and last one is 1. Right? Fourth row. 1, 1, 3, 3, 1. 3, 3 and 1. Awesome. Fourth one. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Awesome. So let us wait till this only. Okay. And now we can see this number is this number is 1. What's about this number? 11. Right? What's about this number? 1, 2, 1. What's about this number? Hello? This is 1. Then this is 1, 1. So 11. So 1, 2, 1. 121. What is this? One, three, three, 1. What is last number? 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Awesome. Awesome. So now I'll tell you something special here. This 1 is nothing but 11 raised to 0. This 11 is nothing but 11 raised to 1. This one 121 is 11 square. 1331 is 11 cube. And 14641 is nothing but 11 raised to 4. If you want to check it, just check it. Any number raised to 0 is 1. Any number raised to 1 is the same number. 11 square, is it 121? 11 square, is it 121?
Yes, no, maybe. One. हेलो, Yes. आवाज नहीं आ रहा है, बहुत कम आवाज आ रही है. Yes, sir. Okay. And what's about 11 into 11 into 11 means 121 into 11 करो. 11 square into 11. So 121 into 11. देखो 1331 आ रहा है क्या? Do and tell me. 131. 131 या 1331? 1331. 1331. Now multiply 1331 with 11. So it will become 11 raised to 4. 11 into 11 into 11 into 11. How much it is? Yes, we. SV Patel. 14641. Okay, 14641. अपना कैमरा ऑन करो दोनों. So now let us go to next part. Now here, what you have to do? You have to do the addition. Okay, horizontal addition. Now tell me, first row addition is 1, right? Second row addition, 1 plus 1 is 2. 2. Two. Awesome. Third row, 1 plus 2 plus 1, 4. 3, 4, 4. Yeah. Fourth row, 1 plus 3 plus 3 plus 1, 8. 8, 8. And now fifth one, 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1. 16. 16, Awesome. 16. Now check out these numbers. What is the relation between these numbers? ये सभी नंबर डबल हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. Yes. yes, sir. 1 to the 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. So हर बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है. और क्या हम रिलेशन बता सकते हैं? जैसे यहाँ 11 का रिलेशन है, यहाँ वैसे 2 का रिलेशन है. मीन्स 2 raised to 0, राइट? वैसे यहाँ हर एक के सामने मैं पहले 2 2 लिखता हूं तो आपको पता चलेगा, राइट? और अभी यहाँ हम आपको बताएंगे, दिस इज 2 raised to 1, 2 square 4, 2 cube 8 and 2 raised to 4 16. Is it there? Yes, no, maybe. Yeah, Yes. यस. यहाँ जैसे हमने 11 से मल्टीप्लाई करते करते देखा कि 1 से 11 आया, 11 का 121 आया, 121 से 1331 आया, 1331 से 14641 आया. सिमिलर वे 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया. Now here you can see one more magic. Yashvi, you may understand, you may not understand. Don't worry about it. Okay, but you can enjoy this. Okay, yeah, there is one game. You know, have you played head and tail? yes, sir. Heads and tails. Heads and tails. So you know that the heads and tails game is very much important for the 10th standard students.
and SSV is there now from 10th standard. So what exactly we are doing? We are solving some examples based on heads and tails, means coin toss, by using Pascal standard. Okay. SSV, that questions are coming from probability, right? Yes, sir. Your last lesson from your syllabus. That is the probability. So in probability, there are some type of questions are there that one coin you have tossed. How many heads and how many tails will be there? Or two coins you have tossed at a time, or three coins you have tossed at a time, four coins you have tossed at a time. Okay, is it clear? So Yes, sir. last time I have told you the number of coins you can identify from this part. Okay, number of coins you can identify from this part. Okay, we have created some formulas. How much formulas you had created last time? A plus We b, have created 4 formulas. yeah, a plus b square, a plus b minus a plus or minus b square, and a plus b minus cube. Just let us write down here a plus A or plus b. B 2 square. Okay, A minus B 2 square. let us create only a plus square and a plus cube. Okay, तो यहाँ हमने क्या किया था, पहले a लिखा था, एंड में Yes. b लिखा था, एंड बीच में हमने लिखा था AB. ए बी लिखा था, राइट ना? एंड उसमें पावर दिया था यहाँ का पहले 2 2, 1, 1. एंड 1 1 एंड यहाँ पे 2, हाँ. यहाँ 1 1 and 2, and these numbers we had given 1 2 1, right now? Yes. So this is 1, तो यहाँ नंबर दिया था हमने 2 एंड 1. यहाँ नंबर दिया था 1, and our answer was a square Plus 2AB plus B square. हाँ, so a square plus 2ab plus b square, तो यहाँ हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, राइट? तो ये हमारा आंसर आ गया था. So now by using the same methods we are going to solve probability. ये आपको कोई स्कूल में या क्लासेस में नहीं सिखाएगा कि इसमें भी प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाता है. So now suppose A as a head and B as a tail. क्या बताया मैंने? A as head, consider A as a head and B as a tail. Now tell me how many times दो के सामने अगर हमने देखा तो कितने नंबर आए हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए मैं बताता हूँ. देखो यहाँ कितने नंबर्स आए हैं दो के, इसमें टोटल नंबर कितना आया है? ये 1 + 2 + 1 कितना हो गया? 1 plus 4. 4. मतलब अगर 2 कॉइन हम लेते हैं तो 2 हेड आएंगे 2 टेल आएंगे, राइट? तो इसलिए 1 Yes, + 2 sir. + 1 + 2 + 1 4 हो गए. तो ये हो गया 4. 4 इज द नंबर ऑफ इवेंट्स. और अभी प्रोबेबिलिटी देखो, अभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर 2 कॉइन एक साथ अगर टॉस कर दिए तो कितने इवेंट्स हो जाएंगे? तो 4 इवेंट्स हो जाएंगे. मतलब क्या ऑप्शंस हमें मिल सकते हैं? तो पहला हमें ये ऑप्शन मिल सकता है, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ. कहाँ गया? Someone knows. Okay.
तो यहाँ पहला तो आएगा हेड हेड, दूसरा आएगा एक हेड दूसरा टेल, तीसरा आएगा पहला टेल दूसरा हेड, और चौथा आएगा पहला टेल दूसरा टेल। राइट? मतलब हम यहाँ क्या देख सकते हैं, अगर दो कॉइन एट ए टाइम अगर टॉस कर लिए तो क्या हो सकता है, एक तो दोनों कॉइन का दोनों हेड आएगा। राइट? यस नो मे बी? Yes, sir. यशवी समझ में आ रहा है? हाँ, अगर दो कॉइन हमने टॉस किए तो दोनों कॉइन का हेड आ जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये हमारा कंडीशन सही हो जाएगा। राइट? अगर पहले का हेड और दूसरे का टेल आया तो ये हो जाएगा, पहले का टेल और दूसरे का हेड आया तो ये हो जाएगा, और हो सकता है कि दोनों भी टेल आ सकते हैं। यस नो मे बी? Yes, sir. Yes, sir. तो ये चारों भी चांसेस है ना? Yes. उसे कहते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स, और इसीलिए यहाँ पे हमारा ये 4 नंबर आ गए। दिस 4 इज हियर। इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स। कितने इवेंट्स आ गए यहाँ पे? 4 Four. इवेंट आ गए। तो 4 इवेंट्स आए, सो नंबर ऑफ इवेंट्स इज 4। अभी मुझे बताओ ऐसे कितने इवेंट्स है कि जिसमें दोनों हेड हैं? दोनों भी head. हेड हैं। ऐसे कितने इवेंट्स हैं? दोनों हेड है, ऐसे कितने इवेंट्स हैं? एक ही। One. हाँ, ओनली 1 इवेंट इज दैट। राइट? दो हेड वाला एक ही इवेंट है। देखो यहाँ एक ये सर पे कितना है? 2। हमने इसके पहले बोला था कि ए इज हेड। दो हेड वाला कितना है? एक है। One. इज इट देयर? हैव यू सीन Yes, दिस? sir. Yes, sir. नाउ टेल मी हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर कि जहाँ पे दो टेल्स हैं, दोनों भी टेल्स? Four. हाउ मेनी? One. ओनली 1। तो दिस इज द ओनली 1। तो ये हो गया ओनली हेड के लिए, ये हो गया ओनली टेल के लिए। नाउ टेल मी मिनिमम 1 हेड एंड 1 टेल। Two. सॉरी, 1 हेड 1 टेल। 1. Two. 1 हेड 1 टेल। यहाँ 1 हेड 1 टेल है, यहाँ 1 हेड 1 टेल है। सो हाउ मेनी? 2. Two. 2 आर देयर है यहाँ पे। Yes, sir. 2। यहाँ अगर नंबर देखें, ऑल हेड ऑल टेल 1 हेड 1 टेल, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स Four. 4. 4। इज इट इजी? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल है। वाह, Yes. देखो यशवी को भी 10th स्टैंडर्ड का भी समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी। ऑसम ऑसम। यशवी आपका स्टैंडर्ड कौन सा? 6th स्टैंडर्ड ना? Yes, sir. वाओ, ऑसम ऑसम। नाउ लेट अस toss 3 coins at a time. Okay, so if you are tossing 3 coins, this part will be there, 1 3 3 1. Now I'm not going to write the equation. You have to tell me what is the number of events. 8. 8. 8. Awesome. This is the number of event. Number of event is 8. 8. And now tell me, this 1 3 3 1 is coming here, so I'll just write down here 1, then 3, then 3 and 1. So these are the probabilities. Now just tell me, this 1 is coming for 3 heads.
Head. यहाँ दो हेड्स के लिए था, राइट ना, तो यहाँ Yes. 3 हेड्स के लिए आएगा, ये आएगा 2 हेड्स के लिए, ये आएगा 1 हेड के लिए, और ये आएगा 0 हेड्स, राइट, Zero heads. 0 Yes, sir. हेड्स के लिए। और अब अभी नीचे जाएंगे तो ये 0 टेल्स के लिए रहेगा, ये रहेगा 1 टेल के लिए, ये रहेगा 2 टेल्स के Two लिए, tails. एंड ये रहेगा 3 टेल्स, Three राइट ना। tails. ऐसे ऐसे ऊपर किया था ना हमने। Yes, sir. हाँ, मतलब ये a क्यूब 2a² b और a b² और यहाँ पे b क्यूब, ये हमारा इक्वेशन के साथ आता है। यहाँ अगर हम a और b को अगर रिप्लेस कर लेता है, a रिप्लेस्ड विथ h एंड b रिप्लेस्ड विथ t, हेड एंड टेल, तो यहाँ ऐसे आ जाएगा। अभी मुझे बताओ, टोटल तो हमने देखा 8, ऑल हेड्स कितना रहेगा? Head All and heads. head. ऑल हेड्स 3. Oh, one. यहाँ दिया है ना 3, ऑल हेड्स, ऑल 3 हेड्स, तो ये आया 1। ऐसे नंबर ऊपर लिखा है, ऑल 3 हेड्स, तो नंबर आया 1। 1. 2 हेड्स और 1 टेल रहेगा 3. 3. 3, 1 हेड एंड 2 टेल्स, 3. 3. और ऑल 3 टेल्स। 1. 1. वाओ, कितना सिंपल हो गया अभी। Yes, sir. खाली ये नंबर हमें याद होना चाहिए, 1331, एंड आई एम टेलिंग यू 10th स्टैंडर्ड में, अप टू 10th स्टैंडर्ड आपको a प्लस बी क्यूब के ऊपर कभी कुछ पूछा नहीं जाता। a प्लस बी रेस टू 4 सिखाया जाता है क्या, पूछा जाता है एनी क्वेश्चन? No, sir. नो। सो आप अगर आपको इतना भी मालूम है अप टू दिस पोर्शन, मतलब 1, 2 एंड 3 इतना भी मालूम है, तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्मूलेस, इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रहता है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एंड बीटा का एडिशन दिया जाता है, अल्फा एंड बीटा का स्क्वायर किया जाता है। अगर टाइम परमिट हो गया तो हम आगे वो देखेंगे, राइट। एंड सेकेंड थिंग, प्रोबेबिलिटी में इतना ही रहता है, 3 कॉइन से ऊपर चौथा कॉइन वो लोग कभी भी टॉस नहीं करते, ओके। आइदर यू विल गेट 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन्स और उसी के ऊपर आएंगे, या दे विल आस्क प्लेइंग कार्ड, 52 प्लेइंग कार्ड, या दे विल आस्क यू रूबिक क्यूब। तो रूबिक क्यूब यहाँ रूबिक क्यूब में 6 साइड्स रहता है, तो उसके हिसाब से देखना है। प्लेइंग कार्ड्स में 52 प्लेइंग कार्ड्स रहता है, आपको प्लेइंग कार्ड देखना है उसमें कौन कौन से नंबर्स के पत्ते रहते हैं। प्लेइंग कार्ड्स अगर यशस्वी आपने अगर देखा नहीं है तो प्लेइंग कार्ड का सेट एक बार देख लेना, गूगल में अवेलेबल है, उसमें कौन कौन से प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं वो पूरे आ जाएंगे। उसमें पिक्चर वाले कितने रहते हैं, नॉन पिक्चर वाले कितने रहते हैं, रेड कितने रहते हैं, ब्लैक कितने रहते हैं, ये सब कुछ उसमें पता चलेगा आपको। क्योंकि वो मालूम हो गया, एक बार प्लेइंग कार्ड मालूम हो गया तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना बहुत 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 सिंपल है। जैसे अभी हमने यहाँ पे कॉइन्स का कर लिया, सिमिलर वे यू कैन डू द सेम थिंग बाय यूजिंग रूबिक क्यूब एज वेल एज प्लेइंग कार्ड्स, ओके। Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस गो विथ द 4 कॉइन्स, जो अभी सिलेबस में नहीं आता है, फिर भी आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए मैं कर रहा हूं, ओके। नाउ इजीली यू कैन टेल मी, यहाँ आएगा 14641 में पहला वाला ऑल 4 हेड्स, बाद में आएगा 3 हेड्स, 3 देन head. आएगा 2 2 हेड्स, head. 2. देन 1 हेड, 1 head. 1 head. और यहाँ 0 हेड्स, 0 Right. head. और उसके नीचे आएगा 0 head. 0 head. नहीं 0 टेल,
zero tail, हाँ, One जीरो tail. टेल, one tail, उसके बाद आएगा वन टेल, Two टू tail. टेल, tail, Three tail. हाँ, three थ्री tail, टेल, वाओ, Four tail. four tail. और फोर टेल, वाओ, ग्रेट, ग्रेट. Now we can very well say all heads. How? What is the probability all heads? Four. One, Four. One. four. One. यहाँ ऊपर के नंबर देखो, पास्कल ट्रायंगल के नंबर इज आवर आंसर. Numbers from Pascal's triangle is our answer. All four heads. What is probability? 1. Total is 16. So probability is 1/16. ऐसा लिखता है. Normally लिखने का स्टाइल ऐसा है कि 1 is the answer and total is 16. तो हम लिखते हैं ऐसे. Probability is 1/16. यहाँ 3 heads and 1 tail. कितना आएगा? Four. Probability? 4. Four. 4 मतलब 4/16. Right? 2 tail, 2 head. Six. 6. 6. 1 head, 3 tails. Four. 4. 4. And all tails. 1. 1. अभी हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे. प्रोबेबिलिटी में और क्या ज्यादा पूछा जाता है? मिनिमम 1 हेड. ऐसे कितने नंबर से मुझे बताओ. मिनिमम 1 हेड. इसमें मिनिमम 1 हेड है. Yes, sir. यस, इसमें मिनिमम 1 हेड है. Yes, sir. इसमें मिनिमम 1 हेड है. Yes. Yes. इसमें मिनिमम 1 हेड है. In every number there are 1 head. No, in this number it is not there. So you have to minus 1 from this 16. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 15/16. 16. राइट ना? Yes, sir. अगर क्वेश्चन आ गया कि मिनिमम 2 हेड्स, तो हमारा एडिशन आएगा ये तीनों नंबर्स का. इस वन मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कलर. ये 3 नंबर्स आएंगे. 2 हेड्स, 3 हेड्स, 4 हेड्स. मिनिमम 2 हेड्स. गॉट इट? Yes, sir. So 1, 4 and 6 ये हमारा आंसर आ गया. अगर हमने किसी ने पूछ लिया कि मिनिमम 1 टेल, अगर मिनिमम 1 टेल पूछ लिया तो यहाँ तक आंसर आ गया. तो 4 + 6 + 4 + 1 is 15. 15/16. इंटरेस्टिंग. Yes, Yes. sir. तो ये हो गया आज का हमारा प्रोबेबिलिटी. अभी यशस्वी आपके लिए स्पेशल असाइनमेंट है. टीचर ने अभी तक टीचिंग नहीं किया है, हो सकता है वो दिसंबर में सिखाएंगे, लेकिन आज आपको अलजेब्रा का बुक ओपन करके उसमें से प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड टू कॉइन जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है बाय यूजिंग दिस मेथड. Okay, Okay? sir. Great. And Yashasvi, you can create Pascal's triangle up to 5 levels once again, so that you will be having mastery over the Pascal's triangle. और ये वापस एक बार देख लेना ये कैसे आ गया है. 11 से मल्टीप्लाई करके देख लो कि यही नंबर्स आ रहे हैं. 2 से मल्टीप्लाई करके देखो यही नंबर्स आ रहे हैं. राइट. एंड यू कैन प्रैक्टिस आवर फॉर्मूलेज a + b square, a ± b cube. अगर ये एक बार हो गया तो आपको 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा. आई नो अभी तक आपको सिखाया नहीं है, एंड स्टिल यू विल बी एबल टू राइट दिस फॉर्मूलेज. राइट? Yes, Yes, sir. no, maybe? Yes, sir. Yes. Okay, thank you very much. And if you have any questions you can ask me. No, sir. आज जो भी सेशन हो गया उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है? कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कोई क्वेश्चन है? No, sir. No. वाओ, मतलब कितना इजी है. देखो समझने के लिए भी कितना इजी है. वी डोंट हैव एनी क्वेरीज ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. थैंक यू वेरी मच. अगर कुछ क्वेरीज नहीं है तो वी कैन स्टॉप इट हियर.
and I am declaring that today's session is over. Thank you very much. Bye.